Good morning, student. Let's start. A6 of chapter Monday Morning Blue, Life Skill. Student, let's check out. Let us learn it. What do you think? In this story, you find that Tom was interested in fishing instead of going to the school. हमने कहानी में ये देखा था. So now let's see. What do you think? Tom did not like going to school. आप क्या सोचते हैं? लाइफ स्किल है बेटा, आपकी सोच बताना है यहाँ पे. I hope you thought that Tom become bored at the school. Boring feel करता था ना वो स्कूल में, इसीलिए नहीं जाना चाहता था. He don't like the schooling. Right? तो वही कह रहा है. Why do you think Tom did not like going to school? If you were a Tom's friends, अगर आप Sid के जगह आप होते, if you are, then how would you counsel या convince, कैसे उसे सलाह दोगे him to attend the school regularly? What you will do? As his friend, you will teach him importance of education in our life. Because without education, human beings are just like a animal. When we get education, then only we become a civilized person. Am I right? So let's see how we will write it. Look here. Answers. कैसे लिखोगे? Look. What do you think Tom did not like going to school? है ना? अब यहां से हम लेते हैं. Tom did not like going to school because he found going to school is a boring task. उसने क्या फाउंड किया? फाइंड का पास्ट फाउंड. बोरिंग टास्क के स्कूल जाना. इंस्टेड ऑफ ही लाइक फिशिंग बिकॉज इन स्टोरी वी कैम टू नो देयर दैट ही लाइक द फिशिंग. नाउ इफ कंडीशन है यू वेयर, कंडीशनल सेंटेंस है. अगर ये पार्ट वर है तो ये पार्ट फ्यूचर में रहेगा. पास्ट में तो पास्ट फ्यूचर. तो वही चीज देखो. इफ आई वर टॉम्स फ्रेंड I would have told him about importance of education. मैं उसे importance of education के बारे में बताऊंगा. In school, we can enjoy with friends, we can play games and participates in CCA, co-curricular activity. जैसे मान लो डांसिंग है, प्लेइंग है, सिंगिंग है, स्पोर्ट पेंटिंग मेकिंग है, मीन्स सो मेनी एक्टिविटीज. 15 अगस्त में सो मेनी सिंगिंग कंपटीशन, ये सारे डिबेट ऐसे, तो ये सारे एक्टिविटीज CCA करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे? स्कूल में एंजॉय करेंगे. दैट्स यू आर लेकिंग नाउ. वी कैन रीड अ बुक्स इन लाइब्रेरी आल्सो. टेक्स्ट बुक NCERT या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप के जो आपके सिलेबस से हट के जो बुक्स है वो पढ़ने की हमें क्या मिलेगी? आदत आएंगे. Now, after that, we can read our books in library also. Thus, education can make us a civilized person. Result क्या निकला? कि education जब हम पढ़ लिख लेंगे तो हम लोग एक संस्कारी व्यक्ति बनेंगे. सभ्यता हमारे अंदर में आएगा. जैसे हमने कहा ना कि without education we are just like an animal. So student, you can add your own self also. आप चाहो तो इसमें बढ़ा चढ़ा के अपने से भी कुछ डाल सकते हो. Right? मीन्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू कैन एड, आप लिख सकते हो यहाँ पे. इफ वी हैव अ डाउट वी कैन शेयर विथ अवर फ्रेंड्स, वी कैन टॉक विथ अवर फ्रेंड्स एज अ फ्रेंडली. दैट्स वी आर लेकिंग एट योर होम. आप अपने घर में हम लोग क्या करते हैं? मिस करते नहीं ये चीज को, फ्रेंडली. आजकल आप देख ही रहे होंगे इन कोरोना पीरियड वी आर मिसिंग सो मच अवर स्कूल टाइमिंग. राइट? इन स्कूल यू आर मेकिंग फन आल्सो. Right? Sometimes somebody scold you, teacher also scold you. That also have their own importance because that will give you a lesson in your life to adjust in a difficult situation. That's you are lacking at your home, because at your home whatever demand you have your parents fulfill it, but at school whatever demand that demands you cannot, you will learn how to abide the rule. In a school you will learn how to adjust with the situation, how to overcome in a difficult situation. That things you will learn or you will
get education from the school, because school is just like a real life. am I right? स्कूल में हमें क्या है, रियल सिचुएशंस मिलते हैं. बट एट अ होम यू आर लाइक अ प्रिंस और प्रिंसेस, राजकुमार है, एंड योर फादर इज अ, पेरेंट्स आर as a king. Whatever demand you have, all are fulfilled. But in school it will not. Clear, students? So okay, I hope you had understand this question. So now come to the next question. Application A10. बेटा बाकी तो हो गया था, A10 पे चलते हैं. In A10, imagine, let's see, A10 में हम क्या देख रहे हैं. Look there. Imagine Tom could not go to school because he had to go to the dentist to get up his tooth extracted. टॉम क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उसकी दांतों को कबाड़ना है, क्योंकि उसके दांत में दर्द है. He needed to send an application to the principal to get a leave. Help Tom to write an application for leave. अब हमें एप्लीकेशन लर्न, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इट विल हेल्प यू होल लाइफ, सारी जिंदगी आपको ये हेल्प करेगा. इफ यू वांट टू सीक एनी परमिशन फ्रॉम योर हायर अथॉरिटीज, नॉट ओनली प्रिंसिपल, हायर अथॉरिटी, वेन एवर यू गॉट अ जॉब ऑल्सो, दैट टाइम इट विल हेल्प यू. सो लेट्स सी. फर्स्ट, रिसीवर्स एड्रेस. बेटा रिसीवर एड्रेस में देखो कौन है रिसीव करने वाला आपके एप्लीकेशन को, प्रिंसिपल. तो द प्रिंसिपल, सबत संडे स्कूल. टॉम्स के स्कूल का नाम क्या है? सबत संडे स्कूल. इफ यू विल राइट, देन यू विल राइट DAB कैंट रोड खगोल. कहां पर वो स्कूल है? तो सेंट पीटर्सबर्ग. आपकी स्कूल कहां है? दानापुर, पटना. एम आई राइट? जब आपको स्कूल छुट्टी के लिए लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल, DAB कैंट रोड खगोल, पटना. डेट अप्रैल, आज का डेट है तो 19/20/21. क्लियर है? एम आई राइट? सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव. सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर लीव, सर. अब सर सैल्यूटेशन है बेटा. अब देखो इसमें 1 मार्क्स, ये 3 लाइन पे मिलेंगे. हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एप्लीकेशन फॉर लीव, हाफ मार्क्स सैल्यूटेशन के लिए सर. राइट? एंड वन थिंग कीप इन योर माइंड, ये जो सिंबल है 2 डॉट है बेटा, इसको कहते हैं कॉलन. कॉलन मीन्स वेयर वी विल यूज द कॉलन. कॉलन ये वाली पार्ट, सब्जेक्ट वाली पार्ट्स ये वाले पार्ट से क्या है? रिलेटेड है. दैट टाइम वी विल यूज कॉलन. एम आई राइट? क्या की है? एप्लीकेशन फॉर लीव. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एप्लीकेशन. मोस्ट रेस्पेक्टफुली, क्योंकि प्रिंसिपल सर हैं तो आप रेस्पेक्ट देंगे ना. तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली, आई बैक टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम टूथ पेन. टॉम को दांत में दर्द था. Last night, since last night, so I could not attend my class for 2 days. 2 दिनों के लिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा. क्यों? तो I had to visit to the dentist. मुझे कहां जाना होगा? डॉक्टर के पास जाना होगा. Kindly grant me leave for these days. How many days? 2 days. I will never forget your kindness. मैं सदा आपका क्या रहूंगा? Oblige. I will remain oblige भी आप ऐड कर सकते हो इसमें. Now you are ensured that your principal sir will grant you permission. तो आप यहां क्या लिखोगे? thanking you, धन्यवाद दे रहे हो. yours का Y कैपिटल, ये सब्सक्रिप्शन है. yours obediently, देखो बेटा S, YOURS, यहां एपोस्ट्रोफ नहीं लगाना है. yours obediently, obediently means आज्ञाकारी. right? because you are avoiding the rules and regulation of your schools. Whatever the teacher are teaching you, you always following it. Whatever monitor is giving you order, you are following it. That means you are obedient, आज्ञाकारी हैं. Who are you? Tom Sawyer. If you will write application to your school, then you will write the name, class, section, admission number, so that principal can find out particular student belongs to which section, which class. Am I right? बात समझ में आ गया? मान लीजिए रोहन कुमार, क्लास 4B, राइट? एडमिशन नंबर 25567, जो भी है आपका एडमिशन नंबर, डैश एंड डैश, एंड क्लास सेक्शन भी हो गया आपका. तो सो दैट द प्रिंसिपल कैन फाइंड आउट व्हाट, कि हु इज दिस.
कौन है ये लड़का? एम आई क्लियर नाउ? चलिए, सो नाउ स्टूडेंट्स, इन न्यू बुक्स ऑल्सो यू विल फाइंड देयर डिफरेंट वे. आप इस तरह भी क्या कर सकते हो, डेट लिख सकते हो 15th April 2021. दैट वाज अमेरिकन एंड दिस वाज इंग्लिश स्टाइल, राइट. ब्रिटेन की स्टाइल में ये फॉर्मेट था, और ये वाला जो फॉर्मेट है बेटा इस डेट लिखने का, ये अमेरिकन स्टाइल है. अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं इस तरह से. एम आई क्लियर नाउ? सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें देखते हैं हम लोग, हैव यू एवर बीन अ डेंटिस्ट? कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हैं? रीड व्हाट सम चिल्ड्रन से. दे आर सेइंग ओ वेरी हॉरिबल, है ना. तो इसी तरह के आप स्टेटमेंट देख रहे हैं. दिस आर ओनली द वर्ड्स आई रिमेंबर व्हेन आई विजिट डेंटिस्ट. क्या था? विजिटिंग द स्कर्स मी. स्कैर्स, डर लगता है उनके पास जाने में. अब देखिए ये क्या कर रहा है, स्टमक एक, आई एम वेरी बिजी विथ माई स्टडीज. अवेफुल सिटिंग अ डेंटिस्ट चेयर, ट्रिम्बलिंग, कांपने लगा. व्हेन दे ट्राई टू लुक इनसाइड माय माउथ, आकाश बोल रहा है. अब व्हाट यू विल से, आप क्या कहोगे? नाउ राइट डाउन इन द स्पेस बिलो हाउ यू फील व्हेन यू हैव टू गो टू द डेंटिस्ट. आपको कैसा लगेगा जब आपको दांत में दर्द होगा? देन यू विल विजिट टू द डेंटिस्ट. डू यू लुक फॉरवर्ड टू इट? गिव रीजन फॉर योर आंसर. हाउ डू यू फील? सो लुक, it is not necessary that whatever I had given you, that's you can write by your answer, your experience. Clear? Yes, I have once to a dentist. Oh, experience जो था बहुत ही खतरनाक था, horrible, भयावह था. क्यों? Sitting in the chair before the dentist like meeting a ghost. कैसा लग रहा था? कि भूत से मैं मिल गया हूं. क्योंकि वो मेरे दांत को क्या करेगा? भूत जो होते हैं, भूत प्रेत जो, वो भी क्या करते हैं? आपके दांत तोड़ देते हैं ना. द डेंटिस्ट इज आल्सो डूइंग सेम थिंग. तो यू कैन, इट इज नॉट फोर्स दैट वॉट एवर द आंसर आई हैड गिवन यू, यू कैन राइट बाय योर ओन सेल्फ दिस वन. ये आपकी एक्सपीरियंस लिखना बेटा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. लेट्स फिनिश अवर क्लास. थैंक यू स्टूडेंट.